آپ ہماری نشریات یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں www.youtube.com/24newshd پر سبسکرائب کیجئے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنا ایکسپریس عوام کو نہ بھائی، ٹکٹیں مہنگی ہونے کی وجہ سے ٹرین کی آدھی سیٹیں بھی پر نہ ہوئیں۔ ریلوے انتظامیہ نے جنا ایکسپریس کو کامیاب بنانے کے لیے گرین لائن کا کرایہ بھی بڑھا دیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے پہلی نان سٹاپ ٹرین جنا ایکسپریس کراچی کے لیے روانہ۔ بھرپور سہولیات اور زبردست تشہیری مہم کے باوجود پہلے سفر میں لاہور سے صرف 233 مسافر، جبکہ کراچی سے لاہور آنے والی ٹرین میں 294 مسافروں نے ہی سفر کرنا پسند کیا۔ مہنگے ٹکٹ کے سبب مسافروں نے وی آئی پی ٹرین میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ دوسری جانب ریلوے انتظامیہ نے جنا ایکسپریس کو کامیاب بنانے کے لیے گرین لائن کا کرایہ بھی بڑھا دیا۔ گرین لائن کا کرایہ 5,450 روپے سے بڑھا کر 6500 کرنے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی سے کراچی کا کرایہ 5,900 روپے سے بڑھا کر 7,000 روپے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بچوں کا لاہور سے کرایہ 4100 روپے سے بڑھا کر 5700 روپے، جبکہ راولپنڈی سے بچوں کا کرایہ 4400 روپے سے بڑھا کر 5200 روپے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ریلوے انتظامیہ نے گرین لائن کی 15 اپریل کے بعد کی ریزرویشن روک دی۔ گرین لائن ٹرین کے کرائے میں اضافے کا اطلاق 15 اپریل سے ہوگا، جس کے بعد ٹکٹوں کی فروخت کی جائے گی۔ اور خبر ہے ایبٹ آباد سے، جہاں ایوب میڈیکل کمپلیکس میں غلط آپریشن کرنا روایت بن گئی۔ نااہل ڈاکٹرز نے 4 سالہ بچی کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا۔ بائیں ٹانگ کا آپریشن کرنے کی بجائے دائیں ٹانگ کا کر ڈالا۔ ایم ایس نااہل ڈاکٹرز کا دفاع کرنے لگے۔ اسے غفلت کہیں یا اپنے پیشے سے غداری، ایبٹ آباد کے ڈاکٹرز نے 4 سالہ بچی کو زندگی بھر کے لیے چلنے پھرنے سے معذور کر دیا۔ ایبٹ آباد کی 4 سالہ حادثہ نور پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے معذور تھی۔ ڈاکٹرز کے مشورے کے بعد اسے آپریشن کے لیے ایوب میڈیکل کمپلیکس لایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بچی کی خراب ٹانگ تو چھوڑ دی اور جو ٹھیک تھی اسے کاٹ ڈالا۔ 24 نیوز نے معاملہ اٹھایا تو پہلے تو ڈی ایم ایس ڈاکٹر الیاس نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیا، پھر ڈٹائی سے بولے مسئلہ بچی کی دونوں ٹانگوں میں تھا۔ تو اپنے الیکٹیو لسٹ پہ رکھے فار آپریشن، لیکن وکیل نے چونکہ اس کو لیفٹ سائڈ کا پرابلم زیادہ لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا یار یہ براڈ غلط ڈالے۔ ایسی بات کوئی صورتحال ابھی تک نظر نہیں آئی ہے، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے۔ ڈاکٹرز کی غفلت اور ڈٹائی پر لواحقین سراپائے احتجاج ہیں۔ ہمیں اب انصاف چاہیے اور میری بچی کا یہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے اس غلط آپریشن اس کا کیوں کیا ہے۔ لواحقین کا سوال ہے کہ بچی کی واقعی دوسری ٹانگ بھی خراب تھی تو انہیں پہلی خراب ٹانگ کے آپریشن کا کیوں کہا گیا؟ ظالموں نے ہماری بیٹی کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیا۔ لاہور کے مال روڈ پہ 6 روز سے دھرنے پر بیٹھے اساتذہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اساتذہ نے کل پنجاب بھر میں کالجز میں تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ صدر پی پی ایل اے کا کہنا ہے کہ کالجز کے باہر دھرنا بھی دیں گے۔ مطالبات کی منظوری تک تدریسی عمل کا بائیکاٹ اور دھرنا جاری رہے گا۔ تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مناظر کہ دھرنا اس وقت بھی جاری ہے۔ لاہور کے مال روڈ پر 6 روز سے دھرنے پر بیٹھے اساتذہ کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے۔ اساتذہ نے کل پنجاب بھر میں کالجز میں تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم اور تحریک انصاف والے بھی ان دنوں کمال کر رہے ہیں۔ صحت کارڈ کی اسکیم عوام کے پیسوں کی، مگر کارڈ کا رنگ تحریک انصاف کے جھنڈے کا۔ کارڈ کا نام انصاف کارڈ اور مطالبہ یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بے نظیر بھٹو کا نام نکالا جائے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سمجھتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ اگر اس کا نام چینج ہے تو چینج ہو گیا نا۔ تحریک انصاف کا اجلاس تھا۔ ارکان نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بے نظیر بھٹو کا نام نکال دے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے بغیر کسی توقع اور انداز شاہی سے کہا نکل گیا۔ مصاحبین شان داد و تحسین کے آوازیں بلند کیے۔ لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ اگر اس کا نام چینج ہے تو چینج ہو گیا نا۔
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि बेनजीर भुट्टो का नाम स्कीम से निकाल दिया जाए। ये मुझे नहीं पता उन्होंने कब कहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका नाम तब्दील जरूर करेंगे। मगर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जब मीडिया से गोया हुए तो कहा, मेरी जाती राय है कि ये नहीं होना चाहिए। मैं जाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ नाम नहीं काम देखा जाता है। शाह साहब ठीक कहते हैं, बेनजीर भुट्टो को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अगर इनका नाम निकालना ही है तो क्या ये बेहतर न होगा कि बेनजीर भुट्टो का नाम हटाने से पहले सेहत कार्ड पर से तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग हटाया जाए और इंसाफ सेहत कार्ड से इंसाफ का लफ्ज। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के फैसले पर बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करना साजिश है। ये पहले नाम तब्दील और फिर प्रोग्राम को ही खत्म कर देंगे। शिकारपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की सोच है, ये खान साहब की डॉक्ट्रिन है। 7 में हमारा थट्टा में औरतें एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ वैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट लोग हैं जिनको मिलना चाहिए, उनके साथ ज्यादती हो रहा है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म साजिश है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना। ये लोग अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन लोग हैं, उनकी ज़हनियत ऐसा है। पहले वो नाम चेंज करेंगे, फिर वो पैसा कम करेंगे, फिर वो बिल्कुल बंद करेंगे। समझते हैं कि उनका पैसा यहाँ ज़ाया हो रहा है, जहाँ मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट इस्तेमाल है इस मुल्क का पैसा करके गरीब तरीन औरतों को कम पैसा दे के। ये इनका डॉक्ट्रिन यही है कि वो 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करके 1 यूनिट कायम करना चाहते हैं। अगर वज़ीर आज़म का एक्टिविटी है, मैं समझता हूँ कि उनका खौफ, उनका इनसिक्योरिटी वो तो सबके सामने है। अहम खबर शामिल करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल ने एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 3 रुपए लीटर महंगा हो गया है, जबकि कीमत में कमी, पैसों में इजाफा रुपयों में नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। तो आपको खबर दे रहे हैं कि हुकूमत ने अवाम पर आखिरकार पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया है और एक बार फिर पेट्रोल ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए लीटर महंगा हो गया है। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 3 रुपए लीटर महंगा हुआ है, जबकि कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि ओगरा ने समरी भेजी थी और 11 रुपए महंगा करने का कहा था, जबकि हुकूमत ने 11 रुपए तो नहीं किया, लेकिन पेट्रोल ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। हुकूमत ने कीमत बढ़ा दी है। एक बार फिर पेट्रोल बम अवाम पर गिरा दिया है और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए लीटर इजाफा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए लीटर महंगा हो गया है, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी के तेल में 3 रुपए लीटर इजाफा किया गया है, जबकि कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। इसी हवाले से बात करेंगे एहतशाम कियानी से। एहतशाम बताएगा, एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक आज रात 12 बजे हो जाएगा। जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 6 रुपए का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपए का इजाफा किया गया है। लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल में 3-3 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इससे कबल भी बढ़ी थी, उसके साथ साथ गैस बिजली की कीमतें बढ़ी थी और उसके साथ साथ अशियाए खुर्द और नौश की कीमतों में भी इजाफा हुआ था, जिससे अवाम परेशान थे। लोग इस परेशानी का इजहार कर रहे थे कि अशियाए खुर्द और नौश भी महंगी हो रही हैं। अब एक बार पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमत 6 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल भी 6 रुपए महंगा है। तो ये इजाफा बड़ा इजाफा है। शहरी परेशान है कि उनके लिए जो लाइफ जिंदगी गुजारना है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। एहतशाम कियानी, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि JUIFA के कायद मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बड़ी सियासी जमातें बाहर निकल आएं। इस हुकूमत को मजीद वक्त देना जाली मैंडेट को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो सुबाइयत फैलेगी। हमने इस्लामाबाद का रुख किया तो हुक्मरानों की चीखें निकल जाएंगी। वह सरगोदा में जलसे से खिताब कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं। ये कोई लंदन प्लान नहीं। वो 24 न्यूज़ की एंकर पर्सन नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे। को बेल हो गई 6 हफ्ते के लिए, चाहे हो शहबाज शरीफ साहब ECL से उनका नाम निकल गया। ये वैसे बताइए ECL से निकला नाम और अब खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब 1 हफ्ते के लिए अगले हफ्ते जा रहे हैं लंदन इलाज के लिए, ये दुरुस्त है या ये भी आप कह रहे हैं? ये सुना है, कल मैं लाहौर में था तो सुना है कि जा रहे हैं, ये उनका राइट है जी जी नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि राइट है या नहीं, बस मैं पूछूं कोई ज्यादा कॉन्स्पिरेसी बात नहीं, इसीलिए तो साफ पूछ रहा हूं। लंदन अक्सर कॉन्स्पिरेसी के लिए आदमी जाता है। वो आप कह रहे कॉन्स्पिरेसी, हमने तो अबव बोर्ड सवाल किया है। लंदन मंसूबे, लंदन प्लान, लंदन कॉन्स्पिरेसी। आप भी कोई लंदन देखें, अब आपने खुद कह दिया, अब लोगों का इस पर फोकस होगा कि लंदन प्लान एक और तो नहीं बनने जा रहा, पास में तो था, क्या पता जी। अच्छा खबरें तो हमने बनानी है। अच्छा ठीक। और मुल्तान से पंजाब असम्बली का हल्का PP 218 ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के मलिक वासिफ राज 40,988 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि पीपल्स पार्टी के अरशद राह 39,486 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त PTI के मजहर अब्बास राह के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान से पंजाब असम्बली के हल्का PP 218 ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने मैदान मार लिया है। जामिया नईमिया इस्लामाबाद में 6ठी सालाना खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि खवातीन को सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा से रोशनी हासिल करनी चाहिए। मदीने की रियासत का क़याम बेहयाई खत्म करके ही मुमकिन है। मजीद जानिए गौहर महसूद की रिपोर्ट में। जामिया नईमिया इस्लामाबाद में 6ठी खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि हमारे लिए दुनिया में कामयाबी का सामान अहले बैत की मोहब्बत है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अनोखी सीरत पर मबनी असबाक को बच्चों के निसाब में शामिल करना होगा। क़यामत के दिन भी अगर कोई राह निजात है तो वो सफीने अहले बैत है। सेनेटर इब्राहिम खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन के आलमी दिन पर कुछ खवातीन ने इस्लाम के शायर का मजाक उड़ाया है। आलमी यौम खवातीन पे कुछ औरतें इकट्ठी होती हैं और इस्लाम के शायर का मजाक उड़ाती हैं। ऐसे वक्त में खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद निहायत ही काबिल मुबारकबाद है। दीगर मुकर्ररीन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मस्जिदों और मिंबरों को मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना होगा। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब 4 रोजा मेला चिरागा जारी है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने मेले में खुसूसी शिरकत की। मारूफ फोक गुलकारों ने शाह हुसैन का सूफियाना कलाम गाकर समा बांध दिया। जैन मदनी हुसैनी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में जारी 4 रोजा शाह हुसैन के नाम से मेला चिरागा के दूसरे रोज मारूफ गुलकारों के सूफियाना कलाम ने खूब समा बांधा। मारूफ गुलकार गुलाम अली ने अपने फन का मुजाहरा किया और भरपूर दाद समेटी। हामिद मीर ने मेला चिरागा में शिरकत की। उनका कहना था ये मेला अमन और रोशनियों का पैगाम देता है। मेला चिरागा जो है ये सिर्फ लाहौर में नहीं हो रहा, बल्कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, और अगर पाकिस्तान के दिल में चिरागा है तो पूरा पाकिस्तान जो है उसमें चिरागा है। 4 रोजा मेले की तकरीबात का एहतमाम डायरेक्टर जनरल प्लाक डॉक्टर सुदरा सदफ ने किया, जिनका कहना है कि सूफिया की तालीम पर अमल करने से ही हम मिसाली जिंदगी गुजार सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 2 भारतीय फौजी एहलकारों ने खुदकुशी कर ली। 12 साल में खुदकुशी करने वाले एहलकारों की तादाद 425 तक पहुंच गई। ITBP के एहलकार रामपाल मीना ने श्रीनगर के लोला में वाक़ अपने कैंप में सरकारी राइफल से फायर करके अपनी जिंदगी का खात्मा किया।
नॉर्थ लंदन में खंजर के वार से 4 अफराद को जख्मी कर दिया गया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। हमलावर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। नॉर्थ लंदन में ये वाक़या पेश आया है। खंजर के वार से 4 अफराद को जख्मी कर दिया गया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। हमलावर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। कि बरतानिया भी जाली पीएचडी डिग्री होल्डर तैयार करने वाला मुल्क बन गया। बरतानिया में चीटिंग वेबसाइट्स के जरिए पीएचडी के मकाले खरीदने के स्कैंडल ने तहलका मचा दिया। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक पीएचडी के मकाले 4 लाख रुपए से 11 लाख रुपए में ऑनलाइन फरोख्त किए जा रहे हैं। खरीदार को सिर्फ मकाले के पहले सफ़े में अपना नाम दर्ज करना पड़ता है। अखबार के मुताबिक जाली डिग्रियां हासिल करने वालों को ये सहूलत भी फराहम की गई है कि आधी रकम देकर आधा मकाला हासिल कर सकते हैं। उस्ताद को दिखाएं, पसंद ना आए तो इसी रकम में नया मकाला खरीद लें। आपको बताएं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल ग्राउंड में जीरो मगर डांस पार्टियों में हीरो हैं। उमर अकमल की दुबई के एक डांस क्लब में झूमने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और इस बुलेटिन से इतना ही।